Hey दोस्तों, welcome to Learning with Ajay Yadav and we are learning Golang. Last video में we learned about the Golang introduction and I hope you enjoyed the video, and from this session we are learning variables, conditions and the loops. Okay, so let's start. So first is, what is the difference between the println and the printf? So all of these three are actually used to print the string on the standard output devices, but these have some minor differences. For example, the print is used to print the statement on the standard output devices without a new line character. So everything you write on the print, it will be printed on the same line, keep on going printing on the same line. If you are printing something in the println, every time it keeps on printing in the next line. Okay, what is the printf? Printf is print a string, but it substitutes the values within the strings. So we will see the example. Let's try to hands-on on these examples. So let's say I go to chapter 2, create a file. I am creating a file print.go. Yeah, I am changing the package name to main. So let's say I created a main here. So first we will try out the print statement. Okay, so let's fmt. What is used of fmt? We just studied in our last tutorial that fmt stands for the formatting input and output. It has the statement print I name is. I write print my name is Ajay. Okay, so what is expected output? Since this is print, it will be printed in the same line, and the second statement is also printed on the same line, and even after these two printing there won't be a next line. Again the cursor will come in the same line. So let's see how we will run it. Go run print.go. So you can see my name is Ajay. As soon as the this is ended, the machine's name come after it. So I hope you enjoy. Now second is we are printing the println. How we will print? fmt dot println. Again I am doing printing the same thing. My name is fmt dot println. Let's say print Ajay. What will happen this time? My name is will be printed on one line, Ajay will be printed on next line, and the cursor will go to the next line of it. So let's print it. My name Ajay and cursor is here. Okay, again in the println itself I could have done this and appended the name here. You can append the Ajay, you can even append certain values. So all values you can append in the same line after the comma separate. Even you don't need to add the space here, comma. This println will automatically add the space after the values. For example, you can see it has added the spaces, and once the println statement is completed, it added a new line. Yes. Now we will the printf. So what is printf here? fmt.println in my name is, instead of printing the name Ajay as differently, we will say that we will print it using the percentage v. Sorry, it is percentage of using the percentage v. And now I will passing the first argument Ajay. So this value automatically take the first argument. If I define more values, it will take the consecutive arguments. So let's try it out. My name is Ajay. But yeah, printf also does not put the new line automatically. In order to add the new line, you add the /n ASCII character. Okay, now again let me try out. So my name is Ajay, it is printed. Yeah, so now we have seen what is the difference between println and the printf. Goes to the next thing, that is the constant and the variables. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और एक और टर्मिनोलॉजी है लिटरल्स. सो वो भी समझ लेते हैं. जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट किया अजय, तो डायरेक्टली आपने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ पे डाल दिया अजय. अगर मुझे अपना नेम बहुत जगह यूज़ करना होता है, आप सब जगह अजय 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 यानी वहाँ पे वो सेम नाम लिखते, तो यू आर यूजिंग द लिटरल.
it is a cumbersome process to use the same thing, because if I later on I change, say that my name is changed from Ajay to Vikas, you have to change at every places, right? So this is a bad practice. So instead we should use the variables. So yeah, let me try it out in the same file. What is, हाँ हम एक बार ये भी देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है, कि जहाँ पे आपकी चीज़ें एक बार जब डिफाइन कर दी और उसके बाद ओवर द टाइम इट इज़ नॉट चेंजिंग. फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट, okay, it is not going to change over the time, and you don't want anyone should be able to change its value, so you declare those values constant. But for example the number of the students in the class, अगर आप उनकी बात करें तो they can change over the time, so it will be defined as the variables, right? So let's try a hands-on experience here. So let's me define constant speed of light. कितना होता है अभी 3 lakh. Yes, there is a comment kilometer per, I'm putting it as kilometer per second. Okay, अब I want to change its value over the time. Let's say I want to change it 10. I'm not able to change because let's see the error. Cannot assign to the speed of light. Why? Because it is declared as a constant. It can be assigned once, and on later period of the time you cannot change its value. That's the advantage of the constant. Let's say variable. I'm declaring variable. With variable is declared with the var as a distance. Distance is, let's say I define some random values here, so it is also declared in the kilometer. So यहाँ पे हम थोड़ा सा फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं. तो फिजिक्स में किसी इतने डिस्टेंस में लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस अपन में स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड. सो लेट्स से हम क्या करेंगे, अभी आपने पढ़ा प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे. टाइम टेकन कैसे दिखाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, और वो वैल्यू किस में आएगी, सेकेंड में. ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट आउट. टाइम टेकन इज 1866 seconds. So now you understand. I hope you understand what is literal, what is constant, what is variable. हाँ, तो भाई इसमें एक और बात है कि जब आपको है ना एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज डिक्लेयर करने, लेट्स से where t1 is equal to 10, where t2 is equal to 20, where t3 is equal to 30. So Golang, what it is, instead of declaring the variable multiple number of the different variable to multiple number of the times, you should declare it like this, where in the braces you can declare t1 is equal to 10, t2 is equal to 20, t3 is equal to 30. ठीक है भाई, एरर दे रहा है. एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है. देखो अनयूज्ड वेरिएबल t1. ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड कि मल्टीपल टाइम्स अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एक बार वेरी डिफाइन करो, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल. सिमिलरली इज ट्रू फॉर द कांस्टेंट एज वेल. ठीक है, ठीक है भाई, स्लाइड्स पे चलते हैं. ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं ब्रांचिंग पे. ब्रांचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम समझेंगे बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो बूलियन वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती हैं, या तो हाँ या ना. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे भाई क्या तुम नहा रहे हो, मैं कहूँगा भाई नहीं, तो या तो मेरा आंसर हाँ होता है या ना होता. आर यू वॉकिंग. सो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेरिएबल होते हैं जिसकी केवल 2 स्टेट्स हो सकती हैं, ट्रू और द फॉल्स, दोज काइंड ऑफ द वेरिएबल्स आर नोन एज बूलियन वेरिएबल्स. ठीक है, चलो इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल का नाम क्या है, कमांड. कमांड की वैल्यू क्या है, स्विच ऑन. ठीक है, आपने रिमोट से बटन दबाया तो उसने ओवर द स्ट्रिंग बोला स्विच ऑन. ठीक है, अब लेटर ऑन इसे भाई चेक करना था कि आपका बल्ब ऑन है या नहीं है, तो वो बेस्ड ऑन द कमांड इट इज चेकिंग. तो हमने एक देखा इज ऑन, ये चेक करना था. हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स डॉट कंटेन्स कमांड. अगर उसके अंदर इस कमांड के अंदर ऑन करके एक सब स्ट्रिंग है तो हम बोलेंगे ऑन है. ठीक है, fmt.println
इज बल्ब ऑन, तो इसकी वैल्यू ट्रू नहीं, इज ऑन। ठीक है, इज ऑन। तो लेट्स ट्राई इट आउट। हमने क्या किया, प्रिंट किया, तो इज बल्ब ऑन ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर देता तो अब क्या आएगा, बूलियन वेरिएबल कि भाई इसकी वैल्यू तो फॉल्स है, यानी बल्ब आपका ऑफ है। तो इज ऑन इज ए बूलियन वेरिएबल, इट कैन हैव द ओनली द टू पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा अभी हम क्या स्टडी करेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं भाई, लेकिन अभी एंड और स्टडी करेंगे। तो ये कब यूज़ होते हैं कि मतलब ऐसा आपके पास दो या मल्टीपल बूलियन वेरिएबल्स हैं, उनको कंबाइन करके आपको एक सिंगल रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर और यूज़ करेंगे, और का मतलब क्या होता है कि कोई एक भी वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और एंड में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ही लेते हैं कि मतलब वेयर इज़ डार्क, भाई बाहर अंधेरा है, हमने बोला कि हाँ, ये तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं जस्ट। इज़ बल्ब ऑन, उसने बोला कि नहीं। इफ इज डार्क एंड इज बल्ब ऑन, तो उस केस में क्या होता, empty dot println artificial light is there। ठीक है, else if is dark and not is bल्ब ऑन। सो यहाँ पे हमने नॉट वेरिएबल लगाया। नॉट का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो बूलियन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फॉल्स कर दिया। अगर बल्ब आपका ऑन नहीं है और डार्क भी है तो क्या मतलब हुआ, इट्स टोटली डार्क। fmt.println इट्स टोटली डार्क। ठीक है, अभी हमने वेरिएबल्स में क्या देखा है, ओ सॉरी, ये सेमीकोलन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़ा मेरे को जावा की हैबिट है इसलिए थोड़ा लग जाता है मतलब। तो अब ये देखिए कि आपके इस डार्क और इस बूलियन वेरिएबल इस बल्ब ऑन फॉल्स है तो इट शुड बी टोटली डार्क। इज टोटली डार्क, यू आर गेटिंग इट्स आउटपुट, दैट्स करेक्ट। ठीक है, अभी हम ब्रांचिंग में हमने देख लिया कि भाई हमें ब्रांचिंग पढ़ना था तो हमने ब्रांचिंग भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे इफ़ देयर इज सर्टेन कंडीशन, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, corresponding execution block will be executed. If that condition is not true, it goes to the else if next condition is true, it checks it and that corresponding block will be executed. Now हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्विच स्टेटमेंट में एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगी होती है और इट कैन हैव द मल्टीपल केसेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक वेरिएबल इज डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ऑन द डायरेक्शन। नाउ दिस डायरेक्शन कैन हैव द मल्टीपल वैल्यूज इन डिफरेंट विद डिफरेंट वैल्यूज यू वांट टू टेक द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू नॉर्थ है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे fmt.println आई एम गोइंग टू द नॉर्थ। यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गो टू द नेक्स्ट कंडीशन एज वेल। ठीक है, केस साउथ fmt.println आई एम गोइंग टू द सी, और यहाँ पे आपने ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस अगर आप में कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो हम कहाँ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पे। fmt.println I am not aware of the location, so let's try it out. अगर हमने नॉर्थ लिखा, नॉर्थ के केस में कहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई एम गोइंग टू द माउंटेन। अगर मैं इसको साउथ कर दूँ तो अभी क्या प्रिंट होगा, आई एम गोइंग टू द सी। अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ और दे दूँ, साउथ 1, so I am not aware of the location, so you know when the switch statement is used. Okay, let's remove it. We go to the next slide. What we have to study now,
वी हैव टू स्टडी द लूप। अब लूप का कहाँ यूज होता है? लूप का अगर आपको कोई भी एक कार्य जो होता है, मतलब कोई भी वर्क होता है, दैट यू हैव टू डू मल्टीपल टाइम्स, सो इन दैट केस द लूप इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे ना 3 की टेबल प्रिंट कर दो, तो एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे जाओगे कोडिंग में, आप बोलोगे सर आपने तो हमें ना प्रिंट एलन सिखाया था, तो देखो ये 3 हो गया, fmt डॉट प्रिंट एलन, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। ऐसे आप 10 बार लिख दोगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे बोलोगे भाई 30, तो सर देखो हमने प्रिंट कर दी। अब मैंने बोलूँ भाई चेंज कर दो इस टेबल को, अब तुम 9 की लिख दो। अरे सर क्या करा रहे हो, यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, 18 लिखना पड़ेगा, ऐसे 10 बार जाके चेंज करके हमें यहाँ पे 90 लिखेंगे। सो इट इज़ क्वाइट कम्बरसम इन, फॉर एग्जाम्पल इन फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज टू विजुअलाइज इट। सो दोनों ही केस में ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वी यूज द लूप, फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि इस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 की टेबल प्रिंट बोली थी सर ने, ठीक है। 4 i इज इक्वल टू 1 से ले चलेंगे, i लेस देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट करनी है, i प्लस प्लस, और सर ने बोला था कि भाई 3 की टेबल प्रिंट कर दो, तो हमें क्या करना है, हमेशा उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है i से। ओके, यू आर जस्ट डन। इतनी छोटी सी बात है भाई। देखो भाई 3 की टेबल प्रिंट होगी। अब कल सर ने बोला कि 9 करना, तो यहाँ पे भाई 9 करेंगे। सर ये तो बड़ा आसान निकला, ठीक है। तो इतना ही आसान है भाई कोडिंग सीखना, ठीक है। अगली बात क्या होती है कि वाइल लूप होता है। बाकी लैंग्वेजेस में आपने वाइल लूप पढ़ा होगा, लेकिन गोलैंग में क्या होता है कि वाइल लूप होता ही नहीं है। तो सर लिखे कैसे? तो इसमें है ना 4 का ही यूज़ करते हैं, वो वाइल लूप की तरह काम कर जाता है। जैसे कि वैर डिक्लेयर किया मैंने, वैर काउंट इज इक्वल टू 4, जब तक मेरा काउंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक fmt डॉट प्रिंट एलन में काउंट को प्रिंट करा देंगे, और क्या करेंगे, काउंट को माइनस करेंगे। तो आउटपुट देख लेते हैं भाई, टेबल के बाद प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे 4 3 2 1। सो दिस, अगर आप ये कंडीशन नहीं डालोगे तो इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो भाई हमने ये भी पढ़ लिया। तो लूप्स हो गए, वाइल लूप हो गया, वाइल लूप जो फॉर लूप के सिंटेक्स यूज़ करके, और इनफाइनाइट लूप हो गया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and I will come up with the new video in the next section. Thank you.